Divisional Council, WIDC. Um, I welcome today's speakers, Dr. Madhavananda Prabhu and Sachipran Prabhu. And also I welcome all the WIDC members who have joined in today's session. And today's topic is handling COVID crisis in ISKCON communities. Yeah, very, very important topic for the present day. You all must be knowing how this second wave of COVID is so disastrous that our medical system is overwhelmed, and so many people, COVID positive patient, they don't get bed and having so much breathing difficulty, no oxygen. So all of you must be knowing what is the situation in India. And ISKCON communities, which includes the resident devotees as well as congregational devotees. And it is also affecting, the COVID crisis is also affecting the ISKCON communities. And we have lost a very wonderful devotee, Pankaj Jangri Prabhu, just few days back due to COVID. And in fact, the Mayapur community, there were more than 200 cases of COVID positive after Gaur Purnima. And that was a big crisis in Mayapur, and they are taking necessary steps. And in fact, Bhaktivedanta Hospital is also helping them in some respect. So this COVID crisis is very, very important to be handled, and in ISKCON communities. And if we take proper precaution, it is very, very much possible to control and overcome this crisis. And if not, there is always a chance of big disaster in our communities. There are several temples in which many, many devotees became COVID positive. We have lost anyway already several devotees, including His Holiness Bhakti Charu Maharaj, His Grace Jashamati Nandan Prabhu, and several devotees. So it is very, very important that we learn how to handle this crisis. And to help us, today we have illustrious doctor devotees. To get advice from doctor devotees is very important. So we have with us Dr. Ajay Sankhe, Dr. Madhavananda Prabhu, MBBS and MD, a pediatrician, and is a senior disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, a regional counselor and a member of EC and the LC body of the temple, executive member of GEV, ISKCON Mira Road and Gopal Gardens. And he is an inspirational force behind the Bhaktivedanta Hospital and its branches, and a leading practitioner in the field of pediatrics, and also the director and the CEO of the Bhaktivedanta group of hospitals. We are very, very happy to have His Grace Madhavananda Prabhu with us. And we also have another devotee, Sachi Pran Prabhu, Dr. Santosh Chaudhary, MBBS and MD from Seth GS Medical College and KEM Hospitals. And he is working with the government of Maharashtra as Assistant Director of Health Services in Palghar District. He's also a national trainer for disaster management, immunization, and nutritional disorders, and a public health expert, and is life member of Indian Association for Preventive and Social Medicine, as well as life member of Research Foundation of Hospital and Health Administration of AIIMS, New Delhi. So both of them are very well known in the medical field, and they are very actively working on this crisis. And and they are handling. Bhaktivedanta Hospital is also having a COVID ward in which they are very successfully treating several people. So they have the first-hand experience, not only from the medical field as well as from handling the COVID related crisis. So we are very, very happy to have Madhavananda Prabhu and Sachipran Prabhu on behalf of WIDC. I once again welcome both of you. And with that few words, I request Madhavananda Prabhu
or Sachit Pran Prabhu, whatever the way you want to handle. The floor is yours. Both of you, please take over, and the floor is yours. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Mukund Madhav Prabhu, for that very elaborate introduction. One more member is there with us, Dr. Vedantakrit Prabhu. I just will introduce him before I start. He is our head of the department for research. And because we have conducted various researches for the COVID, and the research papers are already published in various journals, international journals. But the last research which we have done is on a medicine, which is indigenous medicine, which has been tried, and a successful clinical trial outcome is there, which he is going to present. So we would like to welcome Vedantakrit Prabhu, Dr. Vijay Kumar Gauli also amongst us. Having said that, I'm very grateful to the WIDC and all the devotees who are present here. It's not a happy topic to discuss. It is apparently a mundane topic, but even this mundane topic discussion is part of our devotional service, because we need to know that when crisis comes, even great devotees, they come together and discuss how to deal with the crisis. When Krishna was being attacked by various demons in Gokul, under the leadership of Upananda, who was brother of Nanda Maharaj, all the Brajvasis were also discussing how to manage this crisis. So similarly, today we are apparently discussing a very mundane topic, and we may not feel some spiritual rejuvenation through that, but it's a matter of devotional service, and all of you have taken out time from your very, very busy schedules. Can everyone mute themselves? Yeah. So you have taken out time to show the commitment to serve the devotees, the Vaishnava community, by protecting them from this pandemic, which is worldwide. It is affecting all the devotees worldwide, and particularly India is witnessing the second wave, which was sort of, we were in a euphoric mood after, say, October, November, when the cases went down and everything opened up. And for various reasons, we were a little bit relaxed. But by February end, the second wave started showing its full-blown picture. And by April, we had cases which were much, much more than what the first wave could witness. So I'll just take you through some sort of academic points which will make you understand what's actually going on, because most of the things we sometimes learn from social media or media are not correct, and we based on our knowledge like that, we form some conclusion, and either we take it extremely seriously or sometimes very lightly. Madhavananda Prabhu, just a second to interrupt you. हिंदी बोलना है. हिंदी में बोलना है, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में सुनने के लिए तैयार है, तो प्लीज सॉरी, and it may not be very natural for you, but still request you, because we were told that it is going to be in Hindi. So Hare Krishna. थैंक यू, आपने मुझे संस्कृत में बोलने को नहीं बोला. वो बसुगोस प्रभु को मैं बोलूंगा. सो हिंदी में बात करेंगे कि जो पहला वेव होने के बाद दूसरा वेव जो आया है वो भयंकर है, और इसके लिए आप सब लोगों ने आज का समय निकाला, इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद. थोड़ा सा हम इस दूसरी वेव को, दूसरी जो लहर चल रही है कोरोना की, विशेष करके भारत में, उसके बारे में थोड़े से आंकड़े, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है आगे और कुछ दिनों के बाद,
कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, कब तक हमें इस प्रकार से सारी जो प्रिकॉशंस लेनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर सचिप्राण प्रभु आपको डायरेक्टली ये बताएंगे क्या करना चाहिए। और तीसरा समय जो होगा डॉक्टर विजय कुमार गवली आपको प्रेजेंट करेंगे कि अगर हो गया तो क्या करना चाहिए, कौन सी औषधियाँ, विशेष करके जो हमारी औषधि है उसके बारे में बताएंगे। सो डॉक्टर विजय कुमार, आप थोड़ा सा हमारा स्लाइड दिखाएंगे थोड़ा सा। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि पहली जो लहर थी और अभी दूसरी वाली, इसमें क्या फर्क है। हमें बाहर से दिख रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा केसेस है वगैरह, लेकिन इसमें एक मेन फर्क है ये कि इसका एज ग्रुप जो है कम हो चुका है। मतलब आस्ते आस्ते लोग, बच्चों तक, बच्चे भी पहले पिछली वेव में बच्चे लगभग उनको ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, कोई केसेस बच्चों के निकले ही नहीं ज्यादा करके, बहुत 1-2% निकले होंगे। लेकिन इस समय काफी मात्रा में यंगर पॉपुलेशन, जैसे आप देखेंगे पिछली बार 50 50.4 ये उम्र थी, तो 2 साल से कम हो गए। तो दूसरे वे में ये मीडियन एज ग्रुप है 19 ईयर्स, यानी टीन एज के बच्चे हैं, जो पिछली बार 4.2% है, अभी 5.8% है। और पिछली बार सिम्टोमेटिक ज्यादा थे 87.4, और अभी नहीं, एक्चुअली एसिम्टोमेटिक होना चाहिए उसको, एसिम्टोमेटिक 87.4, अभी इस टाइम 74 पॉइंट, मतलब सिम्टम्स जो आते हैं ज्यादा पेशेंट्स में आ रहे हैं इस दूसरी वेव में। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि किस प्रकार से सडनली, जैसे जो ब्लू लाइन है वो पहली वेव दिखाती है, पहली लहर, सीधा आस्ते 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 बढ़ते गया अगस्त तक, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर तक कम हो गया। लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे सडनली अप्रैल में इस प्रकार से तेजी से बढ़ गया कि हम उसको झेल नहीं पाए। जो हमारा इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, बहुत सारे हजारों बेड्स के जंबो टेंट हॉस्पिटल्स खड़े किए थे, वो सब भी कम पड़ गए, इतनी मात्रा में दूसरी वेव आ गई। तो ये इस प्रकार की लहरें जो है वो पहले भी देखी गई है। जैसे 1918 में जो स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक आया था, उसमें भी ऐसे लहरों में, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करते हैं, तो समझो कि कुछ समय के लिए वो पीछे जाएंगे, फिर जोरदार एक वापस युद्ध पुकार देते हैं, और उसमें फिर से हमारी लड़ाई होती है। इस प्रकार से वेव्स में आते जब तक कि वो पूरी तरह से वायरस ठंडा नहीं हो जाए। तो ये सेकेंड वेव इस प्रकार से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कब तक चलेगा, ऐसा लोगों को प्रश्न होता है कि भाई कब तक इसको हम झेल पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि मिड में, यानी कि अभी और एक आध हफ्ता 10 दिन में इसका पूरी तरह से पीक होके वो आस्ते आस्ते नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये एक SIR मॉडल नाम का एक मॉडल होता है जिसका प्रेडिक्शन है एक उसके, तो बाय सितंबर वी शुड बी अगेन बैक टू नॉर्मल सी। उसके बाद क्या होगा हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट, अभी जो दूसरी वेव है वो इतनी भयंकर क्यों है, जैसे कैसे भयंकर है, विशेष करके हमारे डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसमें हमने देखा कि पिछली बार ज्यादा करके यंग पॉपुलेशन आसानी से उसमें से बाहर आए, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी। लेकिन इस समय 31 साल के, 25 साल के युवा लोग, 38 साल के ऐसे और हेल्दी लोग भी इसमें दे डाइड, बहुत सारे लोग। इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछली बार एक ही स्ट्रेन था, अभी अलग अलग स्ट्रेन्स, जो यूनाइटेड किंगडम से आया हुआ स्ट्रेन है जिसको हम लोग B1.1.7 वेरिएंट कहते हैं, फिर साउथ अफ्रीका B1.3.351, ब्राजील का B1.128, वो अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रेन्स है ये अभी हमने इंपोर्ट किए फ्लाइट्स के द्वारा, वो हो चुका है, अभी उसको आप रोक नहीं सकते। और ऐसे नहीं कि वो
नया स्ट्रेन वहीं पर बनता है। अपने इधर भी कुछ ना कुछ नए स्ट्रेन बनते रहते हैं, क्योंकि वायरस का ये नेचर होता है कि अपने आप को एडजस्ट करता है सिचुएशन के अनुसार। जब उसको पता चलता है कि ये लोग तैयार है, तो मुझे अपना दांव जो है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे युद्ध में होता है कि कोई शत्रु तैयार है तो हम दूसरी साइड से वॉर करते हैं, उसी प्रकार से ये वायरस भी अपना अपना ताकत और स्ट्रक्चर बदलते रहता है। तो उसका जो दूसरा वेव है उसमें बीमारी के नए पहलू दिख रहे हैं। जैसे पिछली बार जो टोसिलिजुमाब नाम की दवा जो है, उससे हम देखते थे कि आईसीयू के पेशेंट को हम देते ही वो 1-2 दिन में आईसीयू से बाहर आ जाता था। हमें बहुत कॉन्फिडेंस था वो दवा पे। इस समय वो दवा बिल्कुल काम नहीं कर रही, ये सत्य है। नेक्स्ट। तो तीसरी वेव भी आने वाली है, ये प्रोफेसर के विजय राघवन, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका कहना है। ये क्या कह रहे हैं कि तीसरी वेव बिल्कुल आएगी, ये 5 मई को उन्होंने डिक्लेयर किया। तो इसलिए ये क्यों हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि पहले वेव में जैसे हम लोग रिलैक्स हो गए और उसके बाद में और बीच में कई लोगों ने ये भी बोस्टिंग करना शुरू किया कि मैंने तो कभी मास्क वापरा ही नहीं, मैंने तो वैक्सीन लिया भी नहीं, कुछ नहीं होता है, नरसिंह देव प्रोटेक्ट करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये हमारे डिवोटी नरसिंह देव, लेकिन बाकी लोग दूसरा किसी और को महत्व देते हैं। दूसरे लोग पॉजिटिव रहो, ऐसे करो, नहीं, आप कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, चैंटिंग कर रहे हो, नरसिंह देव का कवच गा रहे हो, जो भी है, आपको ये लग सकता है बीमारी। सेकेंड वेव उसी का प्रूफ है और थर्ड वेव भी उसी का प्रूफ होगा। थर्ड वेव में ऐसे कहते हैं कि बच्चों का जो पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, वो ज्यादा डेंजरस होगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। देखिए, इंडिया कोविड क्राइसिस फार फ्रॉम ओवर, थर्ड वेव टू बी मोर डेंजरस, दिस इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डायरेक्टर इज सेइंग, शेखर मंडे। तो इस प्रकार से ये आपको खाली अवगत कराने के लिए कि इसको बिल्कुल थोड़ा भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, जो कि कभी कभी हम लोग मजाक में लेते हैं और सोचते हैं कि क्या मास्क की जरूरत है। आप सब लोग लीडर्स हैं, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपकी शायद इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम जो साधारण भक्त है, जो आपको देखकर अपना एक जीवन चलाते हैं, आपको एक उनके लिए उदाहरण है, उनको उदाहरण डालने के लिए यद यद आचरति श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हो तो कम से कम जैसे आप पब्लिक प्लेस में जाओगे, मंदिर में जाओ, मास्क पहन के जाइए। भले आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप सोचेंगे अरे मुझे तो कुछ है नहीं, मैं किसी को देने वाला नहीं, कुछ हुआ तो मुझे ही होगा, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना तो क्या हुआ। आप यू डोंट वेयर मास्क बिकॉज यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू वेयर मास्क सो दैट यू क्रिएट अ गुड एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल से लोग पहनेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, किसी को आलिंगन देना बंद करो, जो कि हम लोग भक्त लोग करते हैं ज्यादा करके, मत करिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसमें ये सब चीजें दूसरे लोग देख के, साधारण भक्त लोग उसको तुरंत कॉपी करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे प्रभु जी ने किया तो हम क्यों नहीं करें। तो इसलिए यही मेरी विनती है, डू नॉट टेक इट लाइटली। और आपको आप ले ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने तो अटेंड नहीं करते इतनी बड़ी मात्रा में। तो अभी मैं सचिप्राण प्रभु को कहूंगा कि वो एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट किस प्रकार के जो नियोजन हमारे छोटे छोटे कम्युनिटीज में, हमारे छोटे मंदिरों में, छोटे सेंटर्स में, बनामठ सेंटर्स में किस प्रकार का माहौल बनना चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सब सचिप्राण प्रभु बताएंगे। सचिप्राण प्रभु। थैंक यू सो मच। हरि बोल। सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, वी कैन हियर यू। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। माधवन प्रभु ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि हमें संकट की घड़ी हमारे सामने है, मगर आज सभी भक्तों का, पूरे महाराष्ट्र सैटेलाइट सेंटर्स, WIDC के जितने भक्त, हमारे मुकुंद माधव प्रभु एंड ऑल सीनियर वैष्णवास जो आज इस अवेयरनेस एक्टिविटी को सुन रहे हैं, मैं सबका
सबके चरणों प्रति मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आप सबको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि आप लोग रहे हो कि भाई ये अभी क्यों जरूरत पड़ी हम सबको सेमिनार देने की या अवेयरनेस करने की। सब तो सुन रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आते रहता है ना। तो ये क्यों जरूरत पड़ रही है आज हम सेमिनार देने की, कि हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारे भक्तों को इस कोरोना के झपेट में ले लिया है। बहुत सारे भक्त हमारे से दूर जा रहे हैं। फिर भी हम लोग ये सुन के भी कोई साइंटिफिक नॉलेज, कोई जिस तरह से हमको लेना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, वो शायद कभी नहीं पहुंच पाती है, कभी पहुंच पाती है। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज को आपको स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो माधवपुर ने बता दिया है, फिर मैं फिर से आपको उसको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सिचुएशन जो है, महाराष्ट्र की हो या भारत की हो, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सिचुएशन जो हमारी है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का केस लोड देख लीजिए। 49.4 लाख केसेस हमारे महाराष्ट्र में अभी तक हुए हैं, और पूरे भारत में 2.5 करोड़ के ऊपर केस हुए हैं, और 2.34 लाख हमारे डेथ हुए हैं। तो ग्लोबली हम लोग देखेंगे तो इतना केस लोड है। और जो पिछले वेव में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, उससे 30 गुना ज्यादा केसेस इस वेव में बढ़ रहे हैं, और इससे ज्यादा भी हमारा, मगर डेथ रेट जो है वो इस बार थोड़ा कम है। और जो माधवपुर ने राइटली बताया कि ये बहुत कॉन्टेजियस वायरस है, सभी पॉपुलेशन को ये कर रहा है। बहुत लोग ये भी नहीं अभी तक सोच रहे कैसे हो रहा है। हम लोग तो मास्क तो पहन रहे हैं, फिर भी हो कैसे रहा है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न पड़ा हुआ है कि हो कैसे रहा है? तो कुछ रिसेंटली लैंसेट जर्नल में आया था कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, हवा से फैलता है। तो हवा से कैसे फैलता है कि जब हम कोई जो बीमार व्यक्ति होता है कोविड का, जब वो खांसी करता है, तो उसके खांसी से जो वायरस बाहर आता है वो एयर में सस्पेंड होता है ना, एयर पार्टिकल के जैसा सस्पेंड होता है। और वो जब एयर हम लोग इनहेल करते हैं, श्वासोच्छ्वास से लेते हैं, तो हमारे शरीर में उस वायरस का संक्रमण हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। इसे नहीं कि वो हवा से सब तरफ ही है, मगर जब भी आप क्राउडेड एरिया में जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, है ना, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में एक जगह पे आते हैं, शादी में जाते हैं, तो एक साथ में बहुत सारा झुंड आता है। तो उसमें से कोई भी व्यक्ति उसमें अगर संक्रमित हो, तो वो जो हवा, अगर हम लोग मास्क नहीं पहना है हमने, तो वो मास्क बराबर से नहीं पहना है। बहुत सारे मास्क यहाँ तक पहनते हैं, नीचे से ऊपर तक मास्क नहीं होता है, हवा नाक से अंदर जाती है। तो ये इसके वजह से, ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की वजह से हमको ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और कोई वर्ण और कोई एज, इसमें कोई बाकी नहीं रहा है, सभी वर्गों में इसका, सभी क्लास में इसका इन्फेक्शन हो रहा है। तो प्रभु जी इसको कैसे बचाना है? हमने तो मास्क तो पहन रहे हैं, हम तो हैंड हाइजीन तो कर रहे हैं, और क्या करना है? जैसे है ना, माउथ आइज, अभी जब हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैंड वॉश करते हैं, कभी करते नहीं करते जाने, तो हैंड वॉश से क्या फर्क पड़ता है। मगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है तो हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही हैंड्स है जो हम कोई सरफेस पे जाते हैं, कि हम मास्क तो पहन रहे हैं, मगर गलती से हमारे मास्क को हम टच करते हैं, नीचे लेके आते हैं, फिर ये हैंड्स हमारे नोज और माउथ ईयर्स को लगाते हैं, मास्क बराबर से यूज नहीं करते हैं। दूसरा एक अवसर लक्षण पाया गया है कि जो लेट नाइट्स होते हैं और बराबर से नींद नहीं लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का भी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाता है। हवा में तो वायरस है, मगर आप उस वायरस को अंदर लेके आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कितनी है, उसके ऊपर उसका प्रभाव आपको पता चलेगा। यानी किस व्यक्ति को प्रभाव हो रहा है, किस व्यक्ति को प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस नहीं है, वायरस होके भी हम उस वायरस को, हमारे शरीर में जब आता है, उसे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति किस तरह से काम करती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे संतुलित आहार हो, और अच्छी तरह से नींद लेना हो, 6 घंटा। जो भले कि नहीं भैया लॉकडाउन है, अभी थोड़ा ज्यादा राउंड कर लेते हैं, तो कल तो ड्यूटी पे तो जाना नहीं है, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज हो सकते हैं। मगर लेट नाइट सोना
और सुबह जल्दी उठना और नींद कम लेना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और रात को हेवी प्रसाद लेना भी मनाही है और अच्छा ताज़ा प्रसाद लेना ज़रूरी है। तो अगर इतना करने के बाद भी पता चलता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स है, थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, बॉडी एक है, माइल्ड कफ है, हाँ, और फीवर भी है। अभी मैं कोरोना के बारे में ये मैं सुन रहा हूँ कि ये तो प्रिवेंटेबल बीमारी है। मुझे सबसे दुख यहाँ पे हो रहा है, इतने भक्त जा रहे हैं और इतने भक्तों को ये अफेक्ट कर रहा है, मगर ये नहीं पता चल रहा है हमको कि इसके प्रिवेंटेबल डिसीज होने के कारण भी लोग क्यों मर रहे हैं। ये तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें प्रिवेंशन नहीं है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि कोरोना से कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है कोरोना का बीमारी के बारे में जानना, ये कैसा फैल रहा है और उसको कैसा हम लोग रोक सकते हैं। प्रिवेंशन करना ही सबसे बड़ा इसमें उपाय है। एक बार व्यक्ति का संक्रमण उसके लंग्स को इन्वॉल्व होता है, वेंटिलेटर पे जाता है, उसका वेंटिलेटर से जो रिकवरी रेट है खाली 2% का है। वेंटिलेटर पे गया, इसका समझ लीजिए 2% लोग ही बाहर आते हैं। मगर हमारे पास जो बीमारी फैलने के पहले के जो दिन है, पहले 5 दिन 7 दिन, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आज जो हमें बुखार आ रहा है, ये भले कोविड का हो या ना हो, उसे हमें कोविड कंसिडर करके चलना है। भले हमने उसकी टेस्ट जांच की है या न की है, खाली इतना ही फर्क है, लैब का रिपोर्ट आपके पास नहीं है। मगर ये कम्युनिटी स्प्रेड है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या होता है? मैसिव वायरस स्प्रेड हुआ है, तो वायरस सब तरफ स्प्रेड हुआ है। हमारे अंदर जब आएगा, रोग प्रतिकार शक्ति के हिसाब से हमारा उसका डिपेंड कितना अपने पास वायरस का लोड आएगा, अंदर शरीर में जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पे कि अपनी दिन की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से अपना टाइम होना चाहिए, उठने का समय होना चाहिए, सोने का समय होना चाहिए। ये तो प्रॉपर सब भक्तों को पता है। उसमें मैंने बताया है कि जब वो काम करने वाले जो भक्त हैं, जो ड्यूटी पे जाते हैं और आते हैं, उन्हें मैंने सजेस्ट किया है कि वो गार्गलिंग करें। तो हमारे पुराने ज़माने में हम लोग ना हल्दी वाला दूध पीते थे। हमारे नाना नानी, हमारे जो माता पिता हल्दी का दूध देते थे। क्यों? क्योंकि हल्दी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, वायरस के प्रति उसको अटैक करने की प्रॉपर्टीज है। दूसरा, हमारी गोमूत्र जो अर्क है, गोमूत्र अर्क जो है एक प्रोप्राइटरी जीएमपी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ओके, तो ये जो गोमूत्र अर्क है, इसका 10 ml और 1 ग्लास जो हल्का सा गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच अच्छी वाली हल्दी डाल के इसको गार्गलिंग करना है। तो गार्गलिंग करने से क्या होता है, जब अपने शरीर में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे और घर पे आने के बाद 2 टाइम इसका गार्गलिंग करना है। खाना खाने के पहले, सोते समय और खाना सुबह उठने के बाद 2 टाइम इसका गार्गलिंग करना है। और बीच में आप भी इसको गार्गलिंग कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मगर ये इससे क्या होगा, हम लोग हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, और ये अगर गार्गलिंग करने से थ्रोट भी सैनिटाइज होता है। अगर हमारा वायरस जब एंट्री करता है तो उसका जो ट्रैक है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज से थ्रोट के एरिया में आता है। थ्रोट में इरिटेशन हमारा जैसे पहला सिम्टम होता है, हाँ, जो गले में खराश होना, हाँ, गले में खसखस होना या अपने को थ्रोट इन्फेक्शन से सोर थ्रोट होना, ये पहला लक्षण है उसका। तो उसके जब हम अटैक करते हैं इससे, तो थोड़ा थ्रोट का सैनिटाइजेशन हो जाता है 2 टाइम। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें ऊपर रिसर्च भी किया था कि स्टीम लेना है कि नहीं लेना है। मगर स्टीम लेते समय आपको बच्चों को बाजू में रखना है। बहुत सारे बच्चे उस स्टीमर के साथ खेल के गर्म पानी अपने शरीर पर डाल लेते हैं। तो गर्म वाफ लेने से थोड़ा बेनिफिट तो होता है। ठंडी के सीज़न में, जब बारिश के सीज़न में अभी तो और बढ़ेगा, तो टाइम पे आपको वाफ लेने से भी थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो 2-3 टाइम इसको वाफ लेना है और आधा घंटा कम से कम आपको कोई भी एक्सरसाइज करना है। मैंने इधर ब्रीदिंग एक्सरसाइज लिखा है, मगर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको आपकी योग साधना से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। ये तो आपकी दिन की चर्या बताई मैंने। उसके बाद हमने कुछ ऐसा रिसर्च किया है जो आपको डॉक्टर विजय कुमार हमारे वेदांत तो बताएंगे। आयुर्कोरो 3 का, जैसे माधवनपुर ने भी मेंशन किया है, इसका प्रोफिलैक्सिस यानी बीमारी हो या ना हो, उसके पहले ही हम लोग बीमारी का एक मेडिसिन जो प्रोफिलैक्टिकली दे रहे हैं। हमने हेल्थ वर्कर के ऊपर इसका रिसर्च किया,
उसके अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। तो हम भरी, और ये जो आयुर कोर 3 है, इसके वजह से मैंने 3000 हमारे ब्रह्मचारी, बहुत सारे मंदिर के भक्त, इनको इसी प्रोफिलैक्सिस से आज भी वो सिक्योर्ड है, सेफ है। हाँ, और इसके साथ साथ में किसी को विटामिन डी की कमतरता होती है, तो वो विटामिन, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में रहते हैं और हमारा उतना सन एक्सपोजर नहीं होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स जब वो उनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण उनका जो वीकनेस है, उनका जो डिसीज प्रोग्रेशन है, वो ज़्यादा डेंजरस साइन से जाता है। और हमारे वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारे लैकुनीज होते हैं, डिफिशियंसीज होते हैं, इसलिए सुपराडीन जो मल्टीविटामिन टैबलेट, जिंक टैबलेट और विटामिन सी टैबलेट, ये गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको लेना है। आयुर कोर 3 भी हमने गवर्नमेंट में इसका रिसर्च किया, उसके रिजल्ट भी बहुत काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये प्रोफिलैक्टिकली आपको ये हर महीना लेना है। अभी जब तक ये पैंडेमिक सेकंड वेव, जैसा माधव ने बताया, थर्ड वेव और कितने वेव आएंगे ये भगवान कृष्ण ही जाने, मगर ये जो भी आएंगे संकट, हमें इस संकट से भगवान ने ही बुद्धि दी है कि इसको हमको प्रोफिलैक्सी करके लेना है। आगे इसके बाद कभी कभी इतना होने के बाद माइल्ड सिम्टम आते हैं। मैंने देखा है कि आयुर को लेने के बाद कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम भी आए, अगर उन्हें एक डोज लिया है, बीच में हर महीना नहीं लिया है, बीच में ये थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है या माइल्ड सिम्टम्स आए हैं, पता चला कि ये कोविड जैसे लक्षण है, तो क्या करना है? उसी को वही दवाई को फिर से एक बार रिपीट करना है। उसके साथ साथ में कुछ एंटीबायोटिक, हमारे डॉक्टर धवल दलाल जी है, डॉक्टर द्वारकाधीश प्रभु जो फिजिशियन है, उन्होंने बोला है कि अजिथ्रोमाइसिन, डोलो, ये 2 गोली आपको लेना है, घर के घर ट्रीटमेंट करना है। उसके साथ साथ में आपके जो फिजिशियन है, आपके जो कंसल्टेंट है, वो डॉक्टर है, उन्हें भी आपको इन्फॉर्म करना है। और अपने शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है, वो इस पल्स ऑक्सीमीटर बोल के, ऐसा ऑक्सीमीटर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आपको अपना ऑक्सीजन लेवल नापना है। और कैसे नापना है? 6 मिनट वॉक करके नापना है। इससे पता चलेगा कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर है या नहीं है, और अपने टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। और आपका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है गोली लेने के बाद भी, तो आपको आपका टेस्ट तो पहले कराना है। टेस्ट करने से, अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट पहले करके ट्रीटमेंट लेना है, तो वो भी हो सकता है। कभी कभी टेस्ट का रिपोर्ट है वो 2-2 दिन नहीं मिलता है, और हमारे भक्त क्या करते हैं, टेस्ट आएंगे तो फिर हम दवा लेंगे, तब तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा होता है। तो टेस्ट का जो रिपोर्ट है डिले होने के कारण मैं सुझाव दे रहा हूँ कि पहले ये लेना है। टेस्ट रिपोर्ट तो आएगा, हमने बहुत सारे देखा है, आयुर कोर 3 लेने के बाद चौथे दिन उसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आता है। मैंने कितने भक्तों को अमेरिका और स्विट्जरलैंड भेजा है, जस्ट ये 3 दिन आयुर कोर का मेडिसिन देके, 1 दिन डोज देके, तीसरे दिन उनका नेगेटिव हुआ है। मैं इसका ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी का नेगेटिव होता है, जिनका वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है उन्हें रिपीट डोज भी लेना पड़ता है। इसके साथ साथ में कभी कभी इसके होने के बाद भी किसी का रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकता है, उसमें उनका मॉडरेट सिम्टम्स किसी को आते हैं, तो फीवर उसका बढ़ता है, उसका बुखार नीचे नहीं आता है, फिर उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। तो उसके साथ साथ में आपको डॉक्टर से जो भी सलाह लेना है, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको करने हैं। ऐसे सिचुएशन में जैसे आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, तो आपके डॉक्टर उसको बता के आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करके, इसके साथ साथ में हमने टेस्ट रिपोर्ट के साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और सीटी टेस्ट भी इसे मेंशन। किसी भक्तों में पाया गया है कि पहले सिम्टम आके गए होते हैं, तब उन्हें उतना कुछ महसूस नहीं होता है, जब सेकंड टाइम उन्हें सिम्टम आता है तो पता चलता है कि उनके सिटी में चेंजेस है। यूजुअली सिटी का जो लंग के चेंजेस है वो दूसरे वीक्स में पता चलते हैं, मगर कुछ भक्तों को पहले का इन्फेक्शन हुआ होता है, पता नहीं, सेकंड टाइम आते हैं तो लंग्स में भी कुछ कोराड-5 जो सिटी का जो लेवल होता है लंग का इन्फेक्शन, वो दिखता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन सेकंड लेवल पे हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ में एक टैबलेट में यहाँ पे लिखी है इनोक्यूमिन, जो कुर्क्यूमिन नाम का टैबलेट है। इसके बहुत सारे रिसर्च चाइना में भी हुए हैं, इंडिया में हुए हैं। उसके रिसर्च जर्नल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। ये ड्रग है ना, जो लोग कोरोना से मरते हैं, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से मरते हैं, उसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद मैंने बोला 6 मिनट वॉक टेस्ट करो फिंगर पे लगा के, और जो लोवेस्ट वैल्यू रीडिंग है उसे आपको नोट करना है, और ये सिम्टम्स को देखना है। तो ये सब जो हम लोग कह रहे हैं, इसके बाद जो इन्फेक्शन का जो चांसेस होता है
या जो आईसीयू बेड का रिक्वायरमेंट का चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, यानी ना के बराबर में होता है। मगर आप डिसीज के पहले 5 दिन अगर आपने उसको डिले कर दिया, छठे दिन में जो डिसीज स्प्रेड होने लगा और लंग में अगर इन्फेक्शन फैल गया और उस वक्त को ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिला और घर में 2-3 दिन ऐसे ही रह गए, तो समझ लीजिए उसको उसका जो पॉसिबिलिटी है आगे जाके प्रोग्रेशन का, उसे रिवर्स करना बहुत डिफिकल्टी। आप जानते हो रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन मिलता नहीं है, फिर लोग भक्त इधर उधर ढूंढते रहते हैं कहाँ बेड मिलेगा अस्पताल में। अभी तो बहुत माहौल, पहले 1 हफ्ते पहले तो बहुत सीरियस सिचुएशन था, अभी शायद बेड मिल रहे हैं, फिर भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से हमारे भक्तों को जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिला। ये सब सिचुएशन से हमें गुजरना नहीं है, तो ये सब कुछ चीज हमें करना है। हमने कुछ हेल्पलाइन ईमेल आईडी क्रिएट की है भक्तों के लिए, तो ये हेल्पलाइन पे आप ईमेल भेज सकते हो, आपकी रिपोर्ट भेज सकते हो, आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस मिल सकता है। एक हॉटलाइन नंबर हमने क्रिएट किया है, कोई आपको दवाई के बारे में, कोई दवाई आपको चाहिए, कुछ ऑर्डर करना है, कुछ कंसल्टेशन करना है, तो आप इस नंबर से फ़ोन कर सकते हैं। और कुछ उनको नंबर में कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो 10 के 6 के बीच में आपको हमारे 2 प्रभु जी हैं, श्री गोपीकांत प्रभु जी और समीर सच्चिदानंद प्रभु, उनका नंबर भी हमें यहाँ मेंशन किया है कि भक्तों के लिए कि आप उसको बात कर सकते हैं, कुछ कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हैं। अपने अपने लोकल एरिया के डॉक्टर्स को भी आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मगर अभी कभी कभी भक्तों को लगता है कि कोई बराबर सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसको वेरिफिकेशन भी कभी कभी करना पड़ता है, तो आप इस नंबर से कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोविड के वार को जीतना मेरा सबसे बड़ा इसमें यही मेरी इच्छा है कि कोई भक्त इस बीमारी से भगवत धाम न जाए। भगवत धाम तो हमको सबको जाना ही है, मगर बीमारी होके नहीं जाना है। हमको स्वस्थ रहना है, प्रचार करना है, पूरे महाराष्ट्र में भगवत नाम का प्रचार करना है। मगर खुद को सुदृढ़ रखेंगे, खुद को अच्छा रखेंगे, तो ही हम प्रचार कर पाएंगे। तो इस प्रचार मिशन में सभी भक्तों को, वैष्णवों को अपनी खुद की आरोग्य की जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी अपने को सेहत अपनी अच्छी रखनी है, ये तो रखना ही है, तो ही हम आगे आगे बढ़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। एक भक्त को जाना, यानी आप सोचिए उस भक्त को, ऐसे भक्त जा रहे हैं जिसे 40-45 साल प्रभुपाद जी का प्रेम मिला हुआ, ऐसे भक्त हमारे से जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, दुख की बात है। भले उसमें कोई भी रीजन हो, एक्सटर्नल रीजन हो, इंटरनल रीजन हो, जो भी रीजन हो, मगर मुझे कोई भक्त अगर कोविड से जा रहा है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल बीमारी है, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल बीमारी है। अभी आयुर्कोर 3 के बारे में हमारे वेदांतकृत प्रभु आपको बताएंगे किस तरह से हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, कैसे इस गौ माता का वरदान से हमने हजारों भक्तों को सेव किया, और ये कैसे गौ माता का वरदान हमारे सब भक्तों को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसके बारे में आपको डॉक्टर विजय कुमार गवली वेदांत प्रभु आपको बताएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो एट द एंड ऑफ द सेशन हम उससे ले लेंगे। यस विजय कुमार जी। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। मैं डायरेक्टली, अभी हमारे पास समय उतना नहीं है, तो डायरेक्टली मैं आयुर्कोर 3 जिस दवा के बारे में सच्चे प्राण प्रभु ने अभी बताया, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी हमने जैसे सच्चे प्राण प्रभु ने बताया, माधवानंद प्रभु जी ने बताया कि हमें वैक्सीन भी लेनी चाहिए साथ में। और वैक्सीन पे हमारा विश्वास इतना गाढ़ा क्यों है? क्योंकि वैक्सीन को एक प्रॉपर सरकार मान्य तरीके से उसके ऊपर अच्छे से क्लिनिकल ट्रायल किए गए और उनके रिजल्ट काफी पॉजिटिव दिखे, और उसी की वजह से अभी सरकारें उसको बांट रही है, हम उसको ले रहे हैं। हम चाहते थे कि ये भी जो दवा है आयुर्कोर 3 जिसकी चर्चा हम बार बार अभी कर रहे हैं, तो भी एक ऐसी रिगरस क्लिनिकल ट्रायल से जाए जैसे कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथोराइज क्लिनिकल ट्रायल हो, तो वही हम अभी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर लगभग 5 क्लिनिकल ट्रायल, 5 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, उसमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल सब कंप्लीट हो गए हैं, तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए टीम भी बहुत बड़ी लगती है। भक्तजन अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टीम थी, और आईआईटी बॉम्बे की टीम लेने का कारण ये था कि
आयुर्क्रो 3 जो दवा है, हम चाहते थे कि उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग इंडिया के एक अच्छे लेबोरेटरी में हो, और आईआईटी बॉम्बे से बेहतर क्या लेबोरेटरी होगी उसकी तपास करने के लिए, तो वहाँ उसका तपास किया गया। और उसका एनालिसिस भी आईआईटी बॉम्बे के जो स्टैटिस्टिशियंस है, जो बहुत जाने माने जाते हैं हमारे देश में, तो उनका हेल्प लिया गया। और श्री सर्वेश्वर सेवा संस्था, ऐसे तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इकट्ठा आके फिर इस क्लिनिकल ट्रायल के बारे में सोचा। और अभी फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हमने स्टार्ट किया। जब भी हम कोई क्लिनिकल ट्रायल चालू करते हैं किसी भी देश में, तो उस देश के कुछ लॉज रेगुलेशंस होते हैं, उसकी परमिशंस लेने के बाद हम वो चालू करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल एक एक्सपेरिमेंट है, कभी सक्सेसफुल हो सकता है, कभी फेल भी हो सकता है। और ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स के ऊपर हो रहा है अभी, तो बहुत नाजुक स्थिति है और बहुत केयरफुली करना जरूरी है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साथ में रख के उनके परमिशन लेने के बाद ही हम उसको चालू कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जब चालू किया, तो उसका इथिक्स कमेटी का अप्रूवल आपके सामने जो हमने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उसका नंबर क्या है, CTRI रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन, और आयुष मिनिस्ट्री। तो ये जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सब कंप्लीट करने के बाद ही हमने वो क्लिनिकल ट्रायल को आरंभ किया। तो हम क्या करते हैं क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स में, जो हमारी टीम है डॉक्टर्स की, एलोपैथी आयुर्वेदिक टीम है, वो हॉस्पिटल्स में जाके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पेशेंट्स को बताया जाता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल है, और आप जो दवा ले रहे हो उसके अधिक ये भी दवा आपको दी जाएगी। जब पेशेंट की सहमति होती है, तो उसके बाद एक क्लिनिकल ट्रायल हम शुरू करते हैं। तो अभी पहला क्लिनिकल ट्रायल का चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 120 पेशेंट को लिया, कंट्रोल ग्रुप में 60 पेशेंट और इंटरवेंशन ग्रुप में 60 पेशेंट। हम पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, और ये देखना चाहते हैं ग्रुप को हम दवा देंगे जिसका आप इस इंटरवेंशन, इस तरफ जो आपको कलर दिख रहा है एक्वा कलर, तो आप मैं सबको एक विनती करता हूँ कि आप थोड़ा याद रखिए इस कलर को। अगले जो कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, तो उस स्लाइड्स में जो बार और जो प्रेजेंटेशन होगा, जो वैल्यूज दिखाई जाएगी, वो होगी उन मरीजों की जिनको हमने आयुर्क्रो 3 ये दवा एडिशनली दी है। और दूसरा जो लाइट पिंक कलर आपको दिखाई देगा आगे कुछ स्लाइड में, वो उन मरीजों का होगा जिसमें हमने आयुर्क्रो 3 दवा नहीं दी है। तो पहला क्लिनिकल ट्रायल एक रैंडमाइजेशन टेक्निक, जो सरकार मान्य टेक्निक है, और जिसको उपयोग करके हमने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। उस क्लिनिकल ट्रायल में हमने क्या किया, तो डे 1 का मतलब है जिस दिन हमने आयुर्क्रो 3 एक ग्रुप को दवा दी, तो दवा देने से पहले हम उनके जो लक्षण है उनका डेटा अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। कफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर, ये जो लक्षण हम कोविड-19 में हम सब अभी जानते हैं क्या लक्षण है, उसका डेटा लेते हैं। और जो लेबोरेटरी टेस्ट, जो सैंपल इस पेशेंट्स का हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो उसको हम RT-PCR टेस्ट हम सब जानते हैं, उसको हम बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू भी हम लेते हैं। तो ये दवा देने के पहले भी और दवा देने के 2 दिन बाद भी, वो देखने के लिए कि 2 दिन में कितना मरीजों को कितना उसका फायदा हुआ है, वो देखने के लिए 2 दिन के बाद भी इसको हमने ये रिपोर्ट किया। और फिर डिस्चार्ज के वक्त और डिस्चार्ज के बाद भी 1 वीक, 4 वीक, 6 वीक्स हम पेशेंट के लगातार टच में थे। हम देखना चाहते थे कि डिस्चार्ज के बाद भी क्या वो ठीक है, क्या उनको तकलीफ है। तो ये इस तरह का डिजाइन हमने किया, और फिर ये रिजल्ट्स है आपके सामने अभी। तो दवा देने के 2 दिन बाद जब डॉक्टर्स मरीजों के पास गए और उनका एग्जामिनेशन किया, तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। कफ, ब्रेथलेसनेस, टेस्टलेसनेस, फीवर। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा देर पहले, ये जो बार आपको एक्वा कलर में दिखता है, वो उन मरीजों का है जिन्होंने आयुर्क्रो 3 दवा खाई है। तो उसमें आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इस कॉलम पे 84% पेशेंट। तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं, दवा देने के 2 दिन के बाद एडमिटेड कोविड-19 पेशेंट के ऊपर इस दवा का किस तरह असर हुआ, यह चर्चा चल रही है हमारी। तो उसमें आयुर्क्रो 3 जिन्होंने लिया, कफ 84% पेशेंट्स को इम्प्रूव हुआ उनका, और 84 इम्प्रूव मीनिंग 84% पेशेंट का कफ चला गया। ब्रेथलेसनेस 92% का चला गया, टेस्टलेसनेस 75%, फीवर 88%। और दूसरा जो ग्रुप था उसमें इतना अधिकतम फायदा दिखाई नहीं देगा। तो आयुर्क्रो 3 काफी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और पेशेंट का बेनिफिट देख के बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज हमने क्या की, ये तो ये डॉक्टर का एग्जामिनेशन रहा, जो डॉक्टर उनको क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा चेक कर रहे थे। जो लेबोरेटरी सैंपल हमने भेजे, तो RT-PCR उसमें भी हमको बहुत इस मरीजों में जिन्होंने दवा खाई, उनमें मरीजों में काफी फायदा दिखाई दिया। तो इस RT-PCR लेबोरेटरी में फायदा ही दिखाई दिया, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये लेबोरेटरी वैल्यू अच्छी आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं वायरस को मारने में सक्सेसफुल हो गए।
अगर हम कोविड-19 वायरस को मारने में सक्सेसफुल होते हैं तो इन्फेक्शन के चांस कम है, क्योंकि हमने वायरस कम कर दिए हैं, और स्प्रेड भी कम होगा। अगर स्प्रेड कम होता है तो बाकी के जो ऑर्गन है, लंग में तो कोविड-19 तो जाना ही है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स तो कम से कम हम बचा पाएंगे, और फिर आईसीयू का जरूरत और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का जरूरत शायद हमें कम पड़े। उसके साथ ही हमने हमारा जो रिसर्च है उस इधर इधर तक ही सीमित नहीं रखा। पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर घर जाता है, तो घर जाने के बाद भी हमने उनको फ़ोन किए डिस्चार्ज के 7 दिन के बाद, 28 डेज़ के बाद और 40 डेज़ के बाद, देखने के लिए कि बहुत सारे मरीज़ डिस्चार्ज होने के बाद भी क्या होता है कि वो उनको तकलीफ़ होती है, वीकनेस फ़ील होता है, अपने काम पे वो जा नहीं पाते हैं। तो वो सब मुश्किलें कम आई जिन लोगों ने ये आयुर्वेद लिया। हम देखेंगे 87% उन्होंने बताया कि हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है, हमें अभी वैसी कोई तकलीफ है नहीं। और हर स्लाइड में आप देखेंगे नीचे मैंने उसके साइंटिफिक रीजंस लिखे हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि ये दवा किस हद तक और क्यों काम कर रही है। डेथ जिन लोगों ने दवा ली उनमें कोई डेथ नहीं दिखाई गई, और जिस ग्रुप में दवा नहीं ली थी उसमें हमें डेथ का रिकॉर्ड भी मिला। अब ये हो गया फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल। अभी क्विकली हम देखेंगे कि दूसरा क्लिनिकल ट्रायल उसके रिजल्ट कैसे थे। क्योंकि हमें चाहते थे कि सिर्फ एक क्लिनिकल ट्रायल से हम इसको अनुमान नहीं करा सकते, तो दूसरा क्लिनिकल ट्रायल की योजना बनाई, और वो सचिव प्राण प्रभु थे, उन्होंने भी फैसिलिटेट किया। सरकारी अस्पताल में एंट्री मिलना, उनकी परमिशंस लेना, ये सब काफी बाधाएं थी। वो सब करके एथिक्स कमेटी का परमिशन आपके सामने है, सीटीआरआई का परमिशन और आयुष मिनिस्ट्री का परमिशन लेके फिर 2 ग्रुप हमने बनाए, 87 पेशेंट कंट्रोल और 87 पेशेंट आयुर्वेद जो दिए उन ग्रुप को। डिजाइन लगभग सेम था, इसमें थोड़ा ज्यादा तपास किया गया। दवा देने के पहले भी, दवा देने के तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन डिस्चार्ज और फॉलोअप भी किया गया। आप देखेंगे कि अभी एक स्लाइड हम अच्छे से देख सकते हैं, इसमें कफ खांसी में भी, ये दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में भी, ये जो ऊपर का लाइन है उन मरीजों का जिन्होंने आयुर्वेद 3 लिया है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत बेटर इंप्रूवमेंट कफ में। 68% का कफ सिर्फ 2 दिन के अंदर चला जा रहा है, 89% लोगों का कफ 5 दिन में जा रहा है। और दूसरा जो ग्रुप है जिनमें उन्होंने नहीं लिया, उनकी मात्रा कम है इम्प्रूवमेंट की, और जिन्होंने लिया वो ज्यादातर लोग इम्प्रूव्ड दिखाई दे रहे हैं। ये कफ का है। ब्रेथलेसनेस में आप देखेंगे सेम ट्रेंड है, काफी लोग इम्प्रूव्ड है। ये टेस्ट लोगों का चला जाता है, जब कोविड-19 बीमारी होती है तो बहुत बार टेस्ट ही नहीं लगता है जीवा पे, और वो बहुत बार खाना नहीं खा पाते हैं, उसका टेस्ट नहीं आता है, फिर इम्यूनिटी लो हो जाती है और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम भी ज्यादातर 69% मरीजों में 2 दिन के अंदर सॉल्व हो रहा है, और धीरे-धीरे हम जैसे-जैसे दिन बढ़ते हैं तो क्विकली रिलीफ पेशेंट्स को, मरीजों को मिल रहा है। वीकनेस भी बहुत बड़ा एक लक्षण कोविड में हम पाते हैं, तो उस लक्षण में भी जिन लोगों ने दवा ली उनमें काफी बेनिफिट दिखाया गया। ये 2 क्लिनिकल ट्रायल थे कि हम मरीजों के ऊपर हमने किए और देखा कि मरीज ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तीसरा जो ट्रायल है थोड़ा अलग है, जैसे सचिव प्राण प्रभु आपको बता रहे थे, प्रोफाइलैक्सिस पर्पस। अगर बीमारी नहीं भी होती है तो बीमारी आने से पहले ही अगर हम लेते हैं, ये हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि ये वैक्सीन है। जैसे वैक्सीन काम करता है कि वो बीमारी आने से पहले ही आपको बल देता है, जिससे आप वो लड़ सकते हैं बीमारी आने के बाद भी। तो इस तरह बीमारी अगर नहीं हो तभी भी क्या हम ले सकते हैं, उसको देखने के लिए हमने क्या किया, इसमें हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर नर्स जो होते हैं जो कोविड-19 मरीजों की देखभाल करते हैं, और जो जिनको ज़्यादा एक्चुअली रिस्क है कोविड-19 से, ऐसे 120 डॉक्टर नर्सेस को हमने एक्सपेरिमेंट किया ये 3rd क्लिनिकल ट्रायल में। उनकी परमिशंस ऑब्वियसली वो ट्रायल शुरू करने से पहले उनकी एथिक्स कमिटी, सीटीआरआई और आयुष के सब जो परमिशंस हमने दिखाए थे पहले वो भी लिए गए। उसके बाद हम इन डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स को 3 महीने तक ये दवा दिए हमने। एक डोज़ 1 महीने में लेना है, उस तरह 3 महीने तक ये डोज़ उनको दिया गया, और हमने फ़ॉलो-अप 5 मंथ्स तक किया। फ़ॉलो-अप किया, और हम ये जानना चाहते थे फ़ॉलो-अप में कि क्या 120 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में से, डॉक्टर्स में से किसी को कुछ कोविड-19 के लक्षण दिखे, किसी को पॉजिटिव आए, किसका डेथ हुआ। ये हमने कंटीन्यूअसली 5 मंथ्स का फ़ॉलो-अप किया, और रिज़ल्ट हमें इस तरह मिले। अभी जो हमारे रिज़ल्ट्स हमने कंपेयर किए, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है इंडिया से, और वो इंडिया का जो पब्लिश्ड रिसर्च है इन जनरल इन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, उन्होंने पब्लिश किया कि 11% लोगों को कोविड होने के चांसेस है हेल्थ केयर वर्कर्स को, और 1% डेथ होने के चांसेस इंडियन डेटा है। तो उसी डेटा के साथ हमने कंपेयरिंग किया हमारे ग्रुप को, हमारे हेल्थ केयर वर्कर को जिन्होंने ये दवा खाई, और देखा गया कि बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट अच्छे मिले। किसी को भी कोई सिम्पटम नहीं था, किसी को कोई पॉजिटिव नहीं आए, किसी की डेथ नहीं हुई, और ना ही किसी को एडमिशन की ज़रूरत पड़ी। तो ये प्रोफाइलैक्सिस में भी काफ़ी
एनकरेजिंग रिजल्ट्स हमें दिखे। और जो आयुर्क्रो 3 जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है जिससे वो बना है, जिसको हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन अप्रोच बोल सकते हैं, काऊ बोस इंडिकस डेरिवेटिव्स के भी कुछ ये है, कुछ एलोपैथिक प्रोडक्ट्स भी, उसका मिक्सरन, उसके अप्रूवल्स, एफडीए अप्रूवल, उसकी जो मिक्सर है उसको अप्रूवल मिला है, ये आपको अप्रूवल लेटर आपके सामने रखा है। कौन ले सकता है, अभी हमने चर्चा की कि 2 ट्रायल हमने चर्चा की, पेशेंट के ऊपर हुए, फिर एक प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी ट्रायल हमने बताया, और अगर आपको लगता है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए हो जो शायद कोविड-19 के सिम्टम दिखा रहा था, तो ऐसे तीनों लोग वो दवा, हमारी दवा ले सकते हैं आयुर्वेद 3। और किसको नहीं लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेनी चाहिए, अगर लेना भी है बहुत जरूरी लगता है तो आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लगेगा। और बच्चे जो 8 साल के नीचे है, जिनको क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर गैस्ट्राइटिस है और पाइल्स है, ऐसे लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। लेना बहुत ही आसान है, 2 बार गार्गल करना है आपको, सचिप्राण प्रभु ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, और 3 बार उसको पीना है। 2 बार गार्गल और 3 बार पीना है, और इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो बोतल के अंदर लिफलेट में दिए गए हैं। एक 2 मिनट का वीडियो है कि उन पेशेंट्स का और उन डॉक्टर्स का जिन्होंने ये दवा का एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने खाया है, हम उनसे सुनना चाहते हैं। एडमिट था सीबीडोसी में, तो मुझे जब खांसी करता था तो बहुत पेन होता था खांसते खांसते। तो एक बार आयुर्वेदिक सेक्शन से मतलब मुझे बोले कि ये गार्गिल आप कीजिए और आप एक पेपर साइन कर दीजिए, तो मैंने साइन किया। और उसके बाद जब गार्गिल करने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट में जो मेरे को जो दम लगता था, जो पेन हो रहा था, वो पेन एकदम धीरे धीरे करके कम होने लगा। और दूसरे दिन तो एकदम जैसे कि दुखावा जैसा है ही नहीं अंदर छाती में, मुझे स्मूथनेस लगा और मुझे एनर्जी जैसा फील हुआ है। सांस लेते हुए मुझे तकलीफ हो रहा था, इससे मुझे खांसी रिपीटेड होता था, वो खांसी जो है वो कंट्रोल होने लगा। तो इस मेडिसिन से काफी फर्क पड़ा, मतलब एलोपैथिक तो था लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ने उस टाइम के लिए मेरे पेन को कम था। ये जो हमको आयुर्वेदिक सेक्शन से दिए गए, वो हर व्यक्ति अगर लेंगे तो उनकी तकलीफ काफी काफी मतलब 99.99% कम ही हो जाएगा। वाइट का जो प्रोडक्ट है वो इसमें काफी इफेक्टिव है, और इसके बिना कुछ होना मतलब बहुत ही मुश्किल है। वो धीरे धीरे केस बिगड़ ही जाता है, लेकिन इसके साथ में मेरा केस। I am Dr. Shikaloda, practicing in South Pool. We are all aware how this pandemic is spreading since last 1 year. Working with COVID patients and seeing patients very closely, I myself was infected last month. I had fever, cough, cold, and terrible weakness. I was taking all allopathic medicines. I had very less improvement. Hence, I consulted Dr. Nagasaheb Nimada from Bhaktivedanta Hospital, Miraro. He advised me to use the Iron 403 along with some other Ayurvedic medicines. In the use of this kit, I found improvement in my symptoms. This kit is used for only 1 day. It is very easy to use it, and my symptoms were reduced. The throat pain, weakness, and along with the cough was reduced. I found it very useful to reduce the viral load. This is my personal experience. We should all use this kit as early as possible, and it definitely prevents severity in symptoms. Now, I myself is advising my patients to go to future. ये डॉक्टर का कंसल्टेशन और आयुर्वेद के ऑर्डर और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट भी है ayurved.com। इसमें आपको पूरे रिसर्च डिटेल्स भी है, अप्रूवल भी है, कैसे लेना है, सब जानकारी उसमें आपको उपलब्ध है। थैंक यू सो मच। ओवर टू सचिप्राण प्रभु एंड माधवान प्रभु। यस, किसी के कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। इसके साथ साथ में एक दो चीज़ मैं कहूँगा कि जो हमारे एक महाराज है, रूप रघुनाथ महाराज, अहमदाबाद में थे, कोई दवाई लेने की इनको इच्छा नहीं थी, तो मुझे लोकनाथ महाराज जी ने कहा कि इन्हें आयुर्कोर 3 दे सकते हैं क्या। तो हमने फिर द्वारकाधीश को मैंने हमको कन्विंस किया कि आयुर्कोर 3 आप ले लीजिए। उनका CT स्कोर बहुत ज़्यादा था और शायद ही बचने के कोई चांसेस थे। फिर हमने आयुर्कोर की डोज रिपीट किए। आज वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और बहुत सारे आशीर्वाद भेज रहे हैं। तो इसका एक एक दो दो उदाहरण हमने ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजा है, मगर ये पहले वाले रिकॉर्डिंग से, बट बहुत सारे वैष्णवों को इससे फायदा हुआ है। अगर इसके बारे में किसी के बारे में कोई प्रश्न हो, आपके इस रिसर्च के बारे में या बीमारियों के बारे में, आपको कहाँ तक समझा है, तो कोई प्रश्न हो तो आपको प्रद्युम्न मिश्रा प्रभु, कैन वी अनम्यूट? Sachipran Prabhu, I just want to tell you one more thing. जैसे आपने इस
ओके, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हर मंदिर का अपना एक टीम होना चाहिए, टास्क फोर्स, जो कि भक्तों को मदद करें। अपने जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, शायद नामहाट सेंटर भी होगा, उसमें भी अगर 2-4 भक्त जो वॉलंटियर करते हैं, कि क्योंकि ये जब प्रसंग आता है तो आदमी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, भक्त कंफ्यूज हो जाता है कि नक्की क्या करना है, और एडवाइस देने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत ज्यादा करके गलत एडवाइस हो जाता है। तो इसलिए एक छोटे छोटे टास्क फोर्स आपको बनाने हैं, जिससे आप भक्तों की सही में मदद कर सकते हैं। वेदर इट इज ऑक्सीजन, वेदर दवाई होनी चाहिए, या उनके घर में कोई छोटा बालक होता है और उसके माता पिता दोनों एडमिट हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो हर चीज के लिए अपने जो वैष्णव परिवार है उसको एक परिवार की तरह एक टास्क फोर्स उसको बनाना चाहिए, जिससे हम लोग लोगों की मदद कर सके। ये भी हमारा एक रिकमेंडेशन है। शायद इसके ऊपर आपका जानकारी दे चुके हैं शायद पहले, मुझे पता नहीं है, तो आई एम रिपीटिंग इट। किसी को कोई प्रश्न है? ललित माधव प्रभु को प्रश्न हैंड रेज किया। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा ये प्रेजेंटेशन था प्रभु जी। हमको ये प्रेजेंटेशन मिल सकता है कि जैसे हमारे जो कम्युनिटी में इन लोगों को ये प्रेजेंटेशन देंगे तो इससे बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि जो हम हमारे लेवल बताते हैं उससे ज़्यादा जो इतना ऑथेंटिसिटी से आपने बताया, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने जो एक्सपीरियंसेस बताया, दैट विल बी वेरी ग्रेट। सो वी कैन सेंड इफ वी हाउ वी कैन गेट दिस प्रेजेंटेशन, आपको भेज देंगे हम। ओके ब्रजेंद्र मिश्रा प्रभु, आपको प्रेजेंटेशन WIDC मेंबर्स को भेजेंगे, या बाद में सैटेलाइट सेंटर्स को भी? उनका टीम बनाया है, जो कोविड रैपिड रिस्पांस टीम का टास्क फोर्स है, उसमें आपको ये भेज देंगे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और किसी को अगर किसी कम्युनिटी को एड्रेस करना हो, या बड़ा कोई लार्ज कम्युनिटी हो, तो हम लोग फिर से उनको एड्रेस करने के लिए भी तैयार है। आपके सैटेलाइट सेंटर्स के जितने भी भक्त मंडली हो, उन्हें भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उनको कन्विंसिंग नहीं कर सकते, तो हम वो भी यहाँ पे भी एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण। Yeah, just for the information, this Zoom meeting is also recorded and it will be uploaded also online. Okay. Yes, Mohan. Yes, Dr. Gate ji. Yeah, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत ही मोटिवेशनल था, और बहुत ही सूदनिंग, यानी बोल सकते कि बून है टुडेज कोविड सिचुएशन में, वेव स्पेशली सेकेंड वेव में यू कैन से। तो मुझे थोड़ा इंग्रेडिएंट के बारे में आपने कुछ डिटेल्स बोला है क्या, या नहीं बोला है तो इंग्रेडिएंट्स और मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो एक्ट करता है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? Yes. Yes, Vedanti Prabhu, you would like to tell? Yeah. So there are 2 to 3 ways how it acts. One is this is अभी ये जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा का प्रोडक्ट चुनते हुए, आयुर्वेदा में प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन हम ये चाहते थे कि कोविड-19 का बीमारी का तो अभ्यास करते समय पता चलता है कि काफी तेजी से बीमारी फैलती है। तो हमें ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए जो तेजी से शरीर में एक्ट करे, क्योंकि आयुर्वेदा हमको जनरली लगता है कि थोड़ा स्लो एक्ट करता है। इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा, सिर्फ आयुर्वेदिक कंपोनेंट नहीं लिए। तो आयुर्वेदिक कंपोनेंट लेते समय भी ऐसे लिए कि जो बहुत स्विफ्टली एक्ट कर सके, और जिनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हो, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हो। तो इसका एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन बहुत सिंपल है। जो लेबोरेटरी में हमने टेस्ट किए थे IIT बॉम्बे के, उसमें हमको इस कंस्टिट्यूट में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेटिव और इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिखाई गई। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट, आपका डायरेक्टली आंसर ऐसे करना, इंग्रेडिएंट जो है वो बॉस इंडिकस काउ यूरिन, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रमाण से यूरिन किस तरह कलेक्ट करना है, किस तरह प्रोसेस करना है, वो बहुत जरूरी है, तभी वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये एक उसका इंग्रेडिएंट है। दूसरे जो थोड़े एलोपैथिक टाइप के इंग्रेडिएंट्स है, उसमें भी इंग्रेडिएंट में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देखी गई। तो ये कंबाइंड इफेक्ट जो है, इस तरह वो कोविड-19 को हेल्प करता है ट्रीट करने में। तो स्लाइड हमने दिखाई नहीं थी, वो प्रेजेंटेशन बड़ा होगा, तो वो IIT लैब का जो एनालिसिस था उस गोवर्क के अंदर, वो स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन बड़ा है इसलिए की थी, पर मोहन निमाय प्रभु को हम भेजेंगे, मोहन निमाय प्रभु को। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हाँ प्रभु जी, मैं निकड़ी आश्रम से बात कर रहा हूँ, अद्वैत कृष्ण दास। यस प्रभु जी हरे कृष्ण। बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये आयुर कोरोना का जो दवाई है बहुत ही अच्छा है, और हमने यहाँ पे बहुत से ग्रस्त भक्तों से यहाँ पे बॉक्स लाया था लास्ट टाइम, वही दिया था और बहुत से अच्छा रिजल्ट भी आया था। तो अभी हमारे शांतरूप प्रभु यहाँ से कांग्रीगेशन के भक्तों को दे रहे हैं। और मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमारी एक बहन है, उनके हस्बैंड वो हॉस्पिटल में है अभी 1 महीने से, वो मुझे अभी पता चला। तो वो कोविड पॉजिटिव है, और लेकिन उसका बाकी नॉर्मल है, लेकिन ब्रीदिंग जो उसका ऑक्सीजन कम ही है। तो उसको अभी ये आयुर कोरोना दे सकते हैं अभी? आयुर्कोर देने के लिए वो डॉक्टर जो एडमिट है उनकी परवानगी परमिशन होना जरूरी होता है। अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन वेंटिलेटर पे नहीं लगाए तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन डॉक्टर की अगर हमारे से कोई लिंक करके उसके बाद से कर सकते हैं तो दे सकते हैं, तो इसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने आईसीयू में आईएमसीयू में भी पेशेंट को दिया है जिनको वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ। ओके, तो डॉक्टर से आपका कांटेक्ट करके आप उनसे बता आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, इसमें हाँ। कोई ये अप्रूव्ड ड्रग है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत पेशेंट का कंसेंट लेके देते हैं। यस यस, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू अद्वैत कृष्ण प्रभु, आपने हरे निगड़ी में इम्प्लीमेंट कर दिया है, मुझे पता है बहुत अच्छा तरह से बेनिफिट मिला है। नहीं प्रभु जी, सब वैष्णव की कृपा, गोविंद जी की कृपा है। एक्चुअली प्रभु जी एक बात बोलना चाहता हूँ, टाइम में लूंगा नहीं ज्यादा। हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर में बहुत से ब्रह्मचारी बीमार थे ये कोविड पॉजिटिव से, लेकिन सभी को ये दवाई हमने दी। जब भी फर्स्ट टाइम आई थी, वो प्रभु जी ने भेजे थे निर्मल चंद्र को, तो उन्होंने फोन पे ही मुझे बात हुई और उन्होंने बताया, वो लिख के लिया था, वैसे ही मैंने दवाई चालू कर दी सब ब्रह्मचारियों को, और उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। लेकिन उसका इतना फेमस हो नहीं पाया इधर गोविंद धाम में। फिर बाद में वो वैसे ही पड़ा था, 240 कुछ तो बॉक्स में डब्बी थे वो। फिर बाद में जैसे अगली बार ये साल में फिर से ये शुरू हो गया, तो इस हिसाब से बहुत से ग्रस्त भक्त माधुरी माता जी, उन्होंने वो दवाई बताई कि यहाँ गोविंद धाम में है, तो मैंने चालू की सबको देने, और इतना अच्छा रिजल्ट आने लगा कि सबको कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे अपना अप्रूव्ड हुआ और सब, उससे जब हमारे पास आई थी वो पूरा ब्लैंक बॉक्स था, उसके ऊपर हाँ, कुछ पहले नाम भी नहीं था। रिसर्च हाँ बॉक्स था आपका। हाँ, तो लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैं खुद भी मैं भी बीमार था, लेकिन दवाई दे रहा था, मैं भी खा रहा था, तो सब अच्छा चल रहा। और इस बार जो ब्रह्मचारी लास्ट टाइम ब्रह्मचारी बीमार नहीं थे, वो बीमार गिर गए सिर्फ, उनको भी वही दवाई दी और उनसे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे एक मेंटेनेंस करने वाले एक राघव चरण प्रभु अपने गुरु बंधु है, वो इतने बीमार हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी, टाइम है? यस बोलिए बोलिए प्रभु। हाँ, तो उसमें उनका 17 स्कोर था सीटी स्कैन, और फिर बाद में मैं तुरंत वो आयुर करुणा उनको दिया। और हमारे दुजराज को यहाँ पे डॉक्टर है ग्रस्त भक्त, डॉक्टर बनकर, उन्होंने जो मेडिसिन दिया, एलोपैथिक मेडिसिन और प्राणायाम, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम, ये और ये जो दवाई, इससे और आंवले का जूस जो है वो ज्यादा 3 टाइम दिया, 30-30 ml, तो उससे बहुत ज्यादा उनको जो वीकनेस कम हो गया, और प्रसाद लेने के भी टेस्ट चालू हो गया। तो ये बहुत ज्यादा रिस्क जैसा ही था गुजरात को, और मैं खुद ही आश्रम में उनको ये करके तैयार हो गए वो 10 दिन में प्रभु जी ठीक हो गए। We have, I think, a few other. We have few other hands raised. You can take. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मोहन रूप बोलिए। मैं बोल सकता हूँ? यस प्रभु जी, मैं मोहन रूप दास इस्कॉन पंढरपुर से बोल रहा हूँ। प्रभु जी बहुत अच्छा से कॉन्वर्सेशन सुना, बहुत अच्छा लगा। और आपका ये जो दवा है आयुर्कोरो 3, आज ही मैंने इसको लिया है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6-7 दिन से थोड़ा सा मेरा कमर के नीचे वगैरह दर्द होता था, थोड़ा सर दर्द, फीवर भी था, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और अभी एक लास्ट गार्गलिंग होने वाला है, शायद पूरी तरह से हो जाए,
लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी जो मेरे ब्रदर है वो कोल्हापुर में रहते हैं और वो अभी एक बड़े कोल्हापुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो तो उन वहाँ के जो डॉक्टर है, बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, तो उन्होंने कहा है कि अभी उनको 6 रेमडेसिविर देना है। तो उसमें से 3 अभी तक उनको दिए हैं। तो वो उनको क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन वगैरह दिया है। अभी वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो मुझे कुछ मैंने पहले भी कुछ डॉक्टरों से सुना है कि वो जो रेमडेसिविर है, बड़े-बड़े अच्छे मतलब जिनका स्वास्थ्य है, उन लोगों को देने के बाद में वो भी उनका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो मुझे अभी ऐसे समझ में मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं? नहीं, अभी रेमडेसिविर जो दवाई है वो अभी 3 डोज मिला है, काफ़ी है। अभी रेमडेसिविर जो दवाई है वो काफ़ी इफेक्टिव थी। वो ड्यूरेशन कम करती है अस्पताल का, जो हमारा स्टे है। वो लाइफ सेविंग ड्रग ऐसा नहीं है, बट जब भी जिस व्यक्ति को मिला है ऐसा थोड़ा उसके साइड इफेक्ट है, बट अभी उसके ऊपर हमारा कोई ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कोई अभी जान बचाने के लिए ये सब दवाई इमरजेंसी अप्रूवल की दवाई है, तो अभी उसमें लेना है। अच्छी बात है, कोई मिल गए तो अच्छी बात है। कोई उसमें ये नहीं है, उनकी लाइफ बचेगी, जरूर बचेगी। तो उनको 3 अभी दिया है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि और 3 देना है। ठीक है, अगर और 3 मिल गए तो अच्छी है। उसका 6 डेज का कोर्स होता है, 6 से 7 डोज का। तो कर दीजिए, अगर मिल रहा है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्योंकि वो डॉक्टर क्या है, किसी को मिलने नहीं देते हैं और कुछ नहीं करने देते हैं, इसलिए। वो ठीक है, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बराबर साइंटिफिकली देते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में। कोई चिंता मत करिए। हाँ, अभी उसके लिए हम लोग उसको रोक भी नहीं सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट वो डॉक्टर दे रहे हैं उनके इलाज के अंदर जो भी उनको लग रहा है डॉक्टर को, उनके ऊपर विश्वास रख के हमें चलना है। जी। फिर ये आपका ये जो हमारा आयुर्कोरो 3 है, इसको भी हम उनको कुछ दे सकते हैं, मगर अभी वो डॉक्टर्स को पूछना है उनको। अच्छा, उनको दे सकते, उनको पूछ के दे सकते हैं। अच्छा। हमारी बात मानेंगे वो? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आप रिक्वेस्ट करिए, पेशेंट का रिक्वेस्ट से मानते हैं। नहीं मानेंगे तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। अगर देना ही है, पेशेंट अगर एडमिट है, तो हम लोग भी उससे बात कर सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस राम लक्ष्मण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैं इस्कॉन मधुबन औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा सेशन हुआ एंड वी आर हैप्पी टू नो इट। मैं चाहता हूँ कि अगले वीक में इस्कॉन मधुबन कांग्रेगेशन के लिए अगर एक प्रोग्राम हो जाए तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि क्या है, लाइव होगा। हमने बताया है, हमारे शुभ गोविंद प्रभु आयुर्कोरो लाया है, बट स्टिल हमारे जो बहुत सारे डिवोटीज है, दे आर रिलक्टेंट टू टेक इट। तो एक बार अगर ये प्रोग्राम हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि सभी डिवोटीज ले लें, तो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वीक में कुछ अरेंज कर सकेंगे? हमारा ये 11 तारीख को NIDC का भी मीटिंग है, उसमें भी हम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो उनके NIDC के जो भी चेयरमैन है उनसे मैं बात कर सकता हूँ कि वो औरंगाबाद कांग्रेगेशन भी ज्वाइन हो सकता है क्या, तो वो प्रोग्राम को भी लाइव कर सकते हैं। प्लीज। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, इस्कॉन आरावड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका ये जो सेशन था जूम सेशन बहुत अच्छा था। और हमारे यहाँ पे कल ही 35 आयुर्कोरो के बॉक्सेस आए हैं और नेक्स्ट मंथ में और 50 बॉक्स हमने ऑर्डर किए हैं। जो भी आश्रम के या कम्युनिटी के जो भी डिवोटीज हैं उन सबको हम अभी ये डोज देने वाले हैं। तो ये जो सेशन हुआ उसमें मुझे एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन ये था रिगार्डिंग वैक्सीन। अभी जो वैक्सीन हम ले रहे हैं, तो बहुत सारे भक्तों ने, मतलब जो हमारे यहाँ सीनियर डिवोटीज ने थोड़ा सा कुछ नेट पर वगैरह रिसर्च किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो वैक्सीन अभी बनाया है स्पेसिफिकली जो फर्स्ट वाली वेव थी, जो पहला स्ट्रेन था, तो उसके हिसाब से बनाई थी। तो अभी जो आया है सेकेंड वेव में जो अलग अलग स्ट्रेन है, तो उनमें ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो थोड़ा इस पर आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन ये उसमें, हाँ अच्छा, बताइए दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन प्रभु जी की, अगर किसी को पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और उसमें वो क्योर हो चुका है,
तो अभी सेकेंड वेव में उसको कोरोना अगेन कोविड होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने परसेंटेज? मुझे पहला प्रश्न आपका वैक्सीन का है, तो ये जो वैक्सीन जो स्ट्रेन बनाई है ना, ये देखो कंस की फैमिली है, तो कंस से पुतना आएगी, कभी बकासुर आएगा, अलग अलग राक्षस आएंगे, बट फैमिली तो कंस की है, तो वो फैमिली प्रोटेक्शन मिलता है। अलग अलग व्यक्तियों का प्रोटेक्शन शायद नहीं मिलेगा, अलग अलग न्यू स्ट्रेन आता है तो शायद उससे प्रोटेक्शन ना हो, मगर फैमिली प्रोटेक्शन होने से क्या होगा, जो उसको आईसीयू का रिक्वायरमेंट है या बेड है, सीरियसनेस जो है वो वहां तक वो व्यक्ति नहीं जाएगा। यानी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उसका इफेक्टिवनेस तो है, उसका 70% लोगों को उसका इफेक्टिवनेस दिखा है कि वो उसको आईसीयू या बाकी जब जो सिवियरिटी ऑफ डिसीज है ना वो नहीं होता है। कोई भी वैक्सीन जो अभी आई है वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उतना उसका एफिकेसी है, वो फैमिली प्रोटेक्शन करता है। अभी नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, उसमें आदमी को इन्फेक्शन हो रहा है, फिर भी आप वैक्सीन और आयुर्कोर दोनों साथ में लेते हैं तो आपको और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, आपको वैक्सीन से 70% मिल रहा है और आयुर्कोर से भी आप प्रोटेक्शन ले रहे हो। तो जैसे हमने लोकनाथ महाराज जी को ऐसे कहा था कि महाराज आप दोनों लेंगे तो आप महाराज बोले कितना परसेंटेज प्रोटेक्शन मिलेगा, तो महाराज ये 70% कर रहा है, इसके एडिशनल ये 20%, तो 99% 95% प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो महाराज बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे वो टाइम पे, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये वैक्सीन और आयुर्कोर 3 दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। और जो सेकंड क्वेश्चन है प्रभु जी, जिसको एक बार कोविड हो चुका है, उसका चांसेस है, उसको सेकंड टाइम भी होने का चांसेस, क्योंकि नए नए स्ट्रेन आते हैं। हमने देखा है वैक्सीन के बाद भी किसी को इन्फेक्शन हुआ है, पहले बार हुआ है फिर भी हुआ है, तो वो उस व्यक्ति की रोग प्रतिकार शक्ति है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर सिवियरिटी कम होती है। पहले इन्फेक्शन में अगर बहुत ज्यादा सिवियरिटी तो नेक्स्ट इन्फेक्शन में उसकी सिवियरिटी कम होती है। तो हाँ, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बट इतना ज्यादा चांसेस नहीं है, कम चांसेस है इन्फेक्शन होने के। और एक सवाल पूछ सकता हूँ प्रभु जी? हाँ यस प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये भी सुना था कि अभी जो वैक्सीन हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है कुछ ऐसा है नेगेटिव जो वैक्सीन लेते हैं, जो वैक्सीन लिया है उसके वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो प्रश्न आपका आवाज नेचुरल इम्यूनिटी है जिसकी वजह से हमारे बॉडी डिजीज के साथ फाइट करता है नेचुरली, तो वैक्सीन की वजह से उसको कुछ डैमेज होता है ऐसा कुछ? नहीं। वैक्सीन ये फॉरेन बॉडी जैसे वैक्सीन एंट्री करती है, तो वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीन यानी वो वायरस होता है उसको लाइव एटेन्यूएट करके वो उस वैक्सीन को देते हैं, तो उस वायरस के प्रति जो भी वो प्रतिकार शक्ति बॉडी में जनरेट करना है उससे वो हेल्प करती है। वैक्सीन अपने इम्यूनिटी को खराब नहीं करती है, इम्यूनिटी को और तंदुरुस्त करती है वो वैक्सीन वायरस के प्रति फाइट करने के लिए, तो इसके इम्यूनिटी के ऊपर कोई परिणाम नहीं है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Yes, Pradyumna Mishra Prabhu. Yes. Prabhuji, you can pick up. There are many hands raised. Achha, you can pick up. Vishnu Gaikwad ji. Vishnu Gaikwad Prabhu. Daitram Prabhu. हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। Yes Prabhu, Daitram Prabhu. प्रभु जी, हाँ यस प्रभु जी, परभणी से बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु जी। Yes, Daitram Prabhu, you can unmute yourself. हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे जीजा जी जो अभी 60 ईयर ओल्ड है, उनको पोस्ट कोविड में हम आयुर्केयर दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं प्रभु जी। तो उन दे सकते हैं दैतराम प्रभु, आराम से दे सकते हैं आप। हाँ, पोस्ट कोविड में भी दे सकते हैं। ये सुनीता माता जी। प्रभु जी, as there are two vaccines, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो दोनों में से अच्छा वाला कौन सा है, मतलब मोर इफेक्टिव? अभी जो मिल रहा है वो लेना है। अच्छा अगर कहेंगे तो कोवैक्सीन है, मगर जो मिल नहीं रहा है इसलिए वो थोड़ा शॉर्टेज है, मगर कोवैक्सीन कोविशील्ड से बेटर है। और अगर फर्स्ट डोज जो है वो कोवैक्सीन का लिया और सेकंड मिल नहीं रहा है तो फिर क्या ले सकते हो? सेकंड वही लेना पड़ेगा जो फर्स्ट है, मिलेगा उन्हें कहना है आपको। सेकंड डोज के लिए उनके पास तैयारी होती है, जैसे जितने
वैक्सीन दिए होते हैं फर्स्ट डोज वाले, उसके उतना वैक्सीन उनको सप्लाई करना ही पड़ता है सेकंड डोज के लिए, क्योंकि वो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा उनको। ओके सर, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस जोशना माता जी। जोशना माता जी, शंकर হরে सर। কৃষ্ণ প্রভুজি, हाँ यस माता जी। আমি ধানবাদ থেকে বলছি। हाँ यस माता जी। আমি বলছি যে আমরা দুজন ভ্যাকসিনটা নিয়েছি, আমার মেয়ে কিন্তু এখনো বয়স হয়নি, মানে 28-29 ইয়ার্স। তো ওর পক্ষে কি আপনার যে মেডিসিনটা নিয়ে করেছেন সেটা কি নিতে পারে? माता जी उतना तो मेरे को बंगाली समझ में नहीं आएगा, बट जो आप तो ठीक है, हम हिंदी से बोल रहे हैं। हाँ। हम दोनों वैक्सीन ले लिया, लेकिन मेरा बेटी जो है उनको वैक्सीन अभी तक पड़ा नहीं, क्योंकि ना उनको एज नहीं हुआ, तो अभी वो सुस्त है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनको की जो आप मेडिसिन बोले दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। लेकिन प्रभु जी हम कैसे वैक्सीन मिलेगा? आपका मेडिसिन तो आपको वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे आपके जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें बता सकते हैं। आपको वेबसाइट जो है, वेबसाइट से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसको आप घर पे एड्रेस पे मिल जाता है। मैंने आपको 2 नंबर भी दिए हैं, वो नंबर आपको भी शेयर किए जाएंगे, आप वो नंबर से फोन करके भी आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और उस डोजेज उसी में ही मिल जाएगा ना? वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में बताया गया है इसमें। अच्छा, नॉर्मल आदमी भी ले सकते हैं? नहीं, तो नॉर्मल आदमी भी लेना चाहिए, यही हम लोग कह रहे हैं। अच्छा। यस माता जी। तो ये वेबसाइट है www.ayurkuru3.com। यहाँ पे जाके आप इस मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा उसका बारे में इम्पोर्टेंट बताया गया है। हाँ, आप ऑर्डर करेंगे, आपको घर पे वो मेडिसिन डिलीवर किया जाएगा। यस जालना से है माता जी, संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे अगस्त महीने में कोविड हो गया था। तो अगस्त महीने के बाद में जब से प्रभु जी अभी तक मुझे स्मेल कहीं था, वो किसी बात का स्मेल नहीं आता प्रभु जी। और थोड़ा सा ज्यादा चलने में वगैरह आया तो सांस लेने में तकलीफ होती प्रभु जी, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या दीदी? नहीं, आप स्मेल लेने आपने आयुर्कोर-3 लिया था क्या? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं। मैं आप ले लीजिए, आपको स्मेल और टेस्ट दोनों वापस आ सकते हैं। वो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा अनइजीनेस जो है वो भी निकल जाएगा आपका। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा ना प्रभु जी से? नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। ये नॉर्मल मेडिसिन है, ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यस विष्णु गायकवाड़ जी। हाँ प्रभु जी बोलिए ना, आपका आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। I think Prabhu, he wanted to ask a question. He has written into the chat box. Can we do CRP test as against RT-PCR or antigen test? Can we do CRP test as against RT-PCR or antigen test? CRP इन्फेक्शन के बारे में बताता है, वो कौन सा इन्फेक्शन है इसके बारे में नहीं पता चलता है। आपको RT-PCR टेस्ट ही गोल्ड डायग्नोस्टिक है। उसके अगर RT-PCR अवेलेबिलिटी ना हो तो आप एक्सरे या सीटी कर सकते हैं, तो वो उससे दोनों से पता चलेगा। हाँ, मगर RT-PCR और एंटीजन दोनों तो होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कोविड है। CRP तो हर इन्फेक्शन में भी बढ़ता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी CRP बढ़ता है। यस प्रद्युम्न मिश्रा प्रभु, उनको अनम्यूट कर सकते हैं आप। अभी कौन दोनों बच्चे हैं? शंकर शान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। यस प्रभु। हाँ, ये अपना भक्ति वेदांत का जो ये है दवाई, वो 15 साल के नीचे के बच्चों को दे सकते हैं क्या?
10 साल के ऊपर सबको दे सकते हैं, 10 साल के नीचे कंसल्टेशन को करके ही देना है डॉक्टर को, उसका डोज कम करना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। ललित माधव प्रभु। Hare Krishna. Actually, some of the devotees in our temple, we had a COVID in August, and after maybe December or January, they had some different kind of problem. Like they had some bad smelling in when they eat food. So that also gets cured because of the. Yeah, loss of taste, loss of smell जो है ना वो typical. It's not a loss of smell, but it's a bad. The different kind of smell is coming. It's not there with the food. Others are able to eat, but the devotees they are not able to. बाकी कोई सिम्टम नहीं है प्रभु जी? नहीं, बाकी कोई सिम्टम नहीं. टेस्ट एंड ऑफ कोर्स स्मेल इज वेरी लेस. हाँ, तो टेस्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा. नहीं करेंगे तो भी प्रोफिलैक्टिकली आप आयुर्कोर 3 लेके एक बार टेस्ट करिए, उससे नेगेटिव आ जाएगा. ओके. ये सज्जन मिश्रा प्रभु, सबके क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं. Yes, Prabhuji. Kun Madhav Thank you. Yeah, Madhavanand Prabhu want to address something? Yeah. The last. Yes, Prabhuji. I know. I would just thank all the people to. सब लोगों ने इसमें सहभाग दिया और अभी इस ज्ञान को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए. ये भी डिवोशनल सर्विस है, इसको मान लीजिए. ये मंडन कोई चीज नहीं है, लेकिन सीरियसली हर भक्त को प्रोटेक्ट करिए. That's all we can say, because all devotees are extremely important, and somehow we have to make sure that everyone is saved. कोई ब्रेवरी नहीं दिखाने का. कोई मुझे एक ही चीज का दुख होता है कि बहुत सारे, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन और आपको उसका अच्छा भी नहीं लगेगा शायद, लेकिन जो लोग ज़्यादा ज्ञान न होते हुए भी ऐसे दिखाते कि मुझे तो कुछ होने वाला, ये सब बकवास है, कॉन्स्पिरेसी है, ये सब जो भी कॉन्स्पिरेसी. लेकिन आज हमने अपने भक्तों को गवाया है, हमने अपने डॉक्टर्स को देखा है, हमने हमारे सामने मृत्यु को देखा है. तो सब आंखों देखा हाल है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है. सब जो चल रहा है वो सत्य है. इट्स अ रियलिटी. सो डोंट गेट इनटू रूमर्स कि ये सब इसने किया है, वैसा किया है, इंटरनेशनल है और सब फेक है. ये सब जो चीजें हैं उनसे दूर रहिए and take proper precautions that every devotee is saved. That's my, ये मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Yes, Uddhav Mishra Prabhu. Thank you very much, Madhavanand Prabhu, Sachipran Prabhu, Vedanta Krit Prabhu, और आपने इतना आपका कीमती समय देकर हम सबको इसके बारे में ज्ञान दिया और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया. और इससे जरूर ही सब भक्तगणों को लाभ होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. Thank you, Prabhu. Thank you, sir. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.